Greeting dear students. So in the previous module, we discussed about the basics of refraction. What is the meaning of refraction of light? Why do the refraction of light take place? In this module, we will discuss about the law of refraction of light and then the term called refractive index. So first we will discuss the law of refraction of light. Similarly, during the reflection topic, we discussed the law of reflection of light. तो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जब लाइट आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो वो लॉ में हमने क्या पढ़ा था? इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये फर्स्ट रूल जो है दोनों के अंदर सेम है। एज यू कैन सी हेयर, दिस इज द ग्लास स्लैब, एयर, light is entering from air into the glass from first medium into the second medium. So this is the incident ray, this is the normal, and this is the refracted ray. They all lie in the same plane. In the law of reflection, second law was angle of incidence is equal to angle of refraction. In case of law of reflection of light, यहाँ पे ऐसा नहीं है. In this case, the angle of incidence is never equal to the angle of refraction. ये ध्यान रखना कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता है। बट इन दिस केस व्हाट इज द सेकंड लॉ? द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जो रेशो है दोनों के साइन का, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कि जब हम दो मीडियम लेते हैं तो दोनों मीडियम में व्हाट इज दिस? इंसिडेंट, नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट ray and the normal is called angle of incidence, which is represented by the letter I, and the angle of refraction, which is represented by letter R, which is the angle between refracted radiation and normal. तो रिफ्लेक्शन में तो हम क्या पढ़ रहे थे? I और R जो थे दोनों सेम थे, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा, I और R सेम नहीं होते, बट देयर रेशो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction. Be careful about the word refraction. In that case the ratio will be constant, और जो रेशो कांस्टेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सिंपल टर्म इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड द लाइट, कि कोई भी मीडियम कितना लाइट को बेंड कर सकता है, दैट टर्म इज स्पेसिफिकली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हाउ यू हैव टू राइट? First is incident ray, first law, refracted ray and normal at a point of incidence. This is called point of incidence. इस point के ऊपर all lie in the same plane. Second is Snell's law, जो हमने सिंपली किया है कि I और R जो है वो सेम नहीं होंगे किसमें? law of refraction में. This relationship was given by the scientist named Snell. तो उसने क्या कहा था? which gives the relationship between angle of incidence and angle of refraction, that is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the given pair of media. Be careful कि मीडिया भी इसमें मेन पार्ट रोल प्ले करेगा। तो साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Now one more question that comes in the board exam is, what is the significance of refractive index? And they will give you a line, the refractive index of diamond is 2.4. What does it signify or what does it mean? कि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका क्या मतलब है? What is the significance of this line or what do you understand by this line? So what you have to write? You have to write the bending capability, the light bending capability of diamond is very high. इसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ज्यादा उसकी लाइट को बेंड करने की कैपेबिलिटी है। तो हाउ यू हैव टू राइट द आंसर? द रिफ्रैक्शन और द कैपेबिलिटी ऑफ डायमंड टू बेंड द लाइट इज मोर और वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अदर मीडियाज लाइक एयर, कि जो लाइट को बेंड करने की कैपेबिलिटी है वो डायमंड की ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में या वैक्यूम के कंपैरिजन में। सो दिस इज दैट्स हाउ दे विल आस्क यू द क्वेश्चन। सो I have already written what is the significance of n. Refractive symbol of refractive index is n. So refractive index of a medium gives the indication of light bending ability of that medium, कि उस medium की light को bend करने की ability क्या है। So whenever question is there, write about the law of refraction. So you have to write these two laws along with this diagram. And question I have already discussed कि refractive index की value दे रखी है तो उससे आपको क्या पता चलता है। और question can also be directly like this. What is the significance of refractive index? It will give us
और टेल अस अबाउट द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड द लाइट, कि कोई मीडियम है वो कितनी लाइट को बेंड कर सकता है, वो हमको किससे पता चलेगा, बाय द टर्म कॉल्ड refractive index. So there are first formula of refractive index or first definition is written here. You can write this. If the question is define refractive index, you can write this definition. कि sin of angle of incidence by sin of angle of refraction is equal to constant. So you have to write like this for a pair of medium. So first definition of refractive index is mentioned in the second point of law of refraction, which is specifically called Snell's law. So refractive index एक हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको I और R की वैल्यू पता है तो हम निकाल सकते हैं. सेकेंड फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. कि यहाँ पे आप देखोगे ऊपर क्या है, एयर, और नीचे क्या है, ग्लास. तो अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, तो हमको क्या पता होनी चाहिए, स्पीड कितनी है लाइट की एयर में और स्पीड कितनी है लाइट की ग्लास में. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया. और टू मीडियम जो हैं दोनों के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है उसका हम रेशियो निकाल लेते हैं. सो देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कि हाउ वी कैन स्पेसिफाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सेकंड इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का, किसमें, दो मीडियम में. ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई, ठीक है. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि हमको कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड क्या लेना है, जहां पे कोई भी मीडियम ना हो. फॉर एग्जांपल वैक्यूम. वैक्यूम मीन देयर इज नो मीडिया. लेट्स अज्यूम लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम स्पेस इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. और लाइट कहां से एंटर कर रही है, ऐसी जगह से एंटर कर रही है जहां पे कोई मीडियम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एयर में एंटर कर रही है, वाटर में एंटर कर रही है, ग्लास में एंटर कर रही है. तो उसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे किसी के साथ, हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम के साथ. तो वैक्यूम तो मीडियम होता ही नहीं है. तो जब वैक्यूम मीडियम होता ही नहीं तो उसकी बेंड करने की कैपेबिलिटी होगी ही नहीं, तो उसके अंदर स्पीड जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. इसलिए जब वैक्यूम से लाइट विल एंटर इनटू ए मीडियम, तो मीडियम तो बेंड करेगा. So that is why it is called absolute refractive index, क्योंकि दूसरे को बेंड करने का कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं. So when light is going from vacuum to another medium, then the value of refractive index is called absolute refractive index. So how we can represent n glass. इसके अंदर जब हम ये लिखेंगे इसका सिंबल, तो n is the symbol of refractive index. तो लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो n के साथ मैंने सिर्फ एक ही चीज लिखी है, क्योंकि मैंने कंपेयर किसके साथ किया, वैक्यूम के साथ, या कोई मीडियम नहीं है. तो n ग्लास. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, देयर इज नो मीडियम. नो मीडियम मीन वैक्यूम. तो जनरली वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर हम पॉइंट्स में जाते हैं तो इट इज स्लाइटली हायर. What is the speed of light in air? Same 3 × 10⁸ meter per second. But when we go into the specific points, तो वैक्यूम में स्पीड ज्यादा होती है in comparison to air. But for the calculation sake of purpose और generally स्पीड में जो हम कंपैरिजन करेंगे तो that is somewhat similar. तो वैक्यूम में भी यही स्पीड लेते हैं और एयर में भी यही स्पीड लेते हैं. तो जनरली जब हम एयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं या फिर वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आएगी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जनरली इसको हम क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट refractive index. So this is the first one. Next is relative refractive index. So what is the meaning of relative refractive index? Whenever we use the term relative, what we are doing, we are comparing the value of one medium with the another medium. की जो लाइट को बेंड करने की कैपेबिलिटी है एक मीडियम की, उसको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे मीडियम के साथ. Whenever that we discuss during the relative atomic mass. तो relative atomic mass में क्या होता है, we compare the masses of each and every element with the carbon 12 आइसोटोप. की कार्बन का कौन से आइसोटोप से कंपेयर करते हैं, कार्बन 12. बाकी सबका मास हम निकालते हैं. यहाँ पे हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, दो मीडियम को आपस में कंपेयर करेंगे और उनकी जो लाइट की बेंड करने की कैपेबिलिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे. सो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, एंड मीडियम शुड बी अदर देन वैक्यूम और एयर, to the another medium, then the value of refractive index is called relative refractive index. So how it can be represented and what are the symbol of relative refractive index? Look here, what I have written, n to 1, n to 1.
इन फ्यू ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड n/2 1। इसमें मैंने 1 ऊपर लिखा है, 2 नीचे लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 नीचे लिखा है और 1 लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखा है। कई बुक्स में क्या मिलेगा, n/1। तो इसको n/21 नहीं पढ़ना है, इसको कैसे रीड करना है आपको, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। n स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो नीचे लिखा हुआ है उसकी स्पीड नीचे आएगी, जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी स्पीड ऊपर आएगी। तो इसको बोलते कैसे हैं, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो दोनों का एक ही मतलब है, बस रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हैं। सो हाउ यू हैव टू से, अगर आप इसी तरह से कोई और लेते हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात करता हूं, आई विल राइट हियर n इज द सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज दिस, ग्लास। या तो हम ग्लास सीधा लिख सकते हैं, आई हैव ऑल्सो रिटन हियर कि n ग्लास लिखो या ng लिखो। यहाँ पे तो क्या है, इसके साथ और कोई लेटर नहीं लिखा है मैंने इस साइड पे, तो अगर डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही ये लिखा हुआ है ng n ग्लास, तो इट इज द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हमने कंपेयर किसके साथ किया हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो ng इज इक्वल टू, जो चीज मैं यहां नीचे लिख रहा हूं वो नीचे आएगी, तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये क्या एब्सोल्यूट, और किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम के साथ। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसका स्पीड का कंपैरिजन हमने करना है। सिमिलरली दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ आई राइट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सिंबल क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्योंकि बेंडिंग कहां पे हो रही है, ग्लास के अंदर, तो मैं कैसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सिमिलरली मान लो वाटर है और वाटर से लाइट कहां जा रही है, ग्लास के अंदर, तो मैं कैसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो चीज नीचे लिखी हुई है उसकी स्पीड नीचे आएगी, जो चीज ऊपर लिखी हुई है उसकी स्पीड ऊपर आएगी, मतलब NGW बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर बोल रहा हूं मैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो उसकी स्पीड कहां आएगी, नीचे, और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसकी स्पीड कहां आएगी, फॉर्मूले के अंदर, ऊपर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो फर्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि तीनों जो रेज हैं वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी। सेकेंड इज स्नेल्स लॉ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन सेम नहीं रहेगा, बिकॉज द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज द टर्म कॉल्ड कांस्टेंट। उनका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो एंगल इक्वल नहीं होंगे जब वो मीडियम चेंज करेगी लाइट, और जो कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता क्या चलता है कि लाइट को कितना बेंड करता है कोई भी मीडियम। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो फॉर्मूला ये हो गया साइन आई बाय साइन आर, द सेकंड फॉर्मूला इज द रेशो ऑफ स्पीड in different medium. So they are of two types, absolute refractive index, second is relative refractive index। absolute में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन ऊपर किसकी स्पीड आएगी, वैक्यूम की या एयर की। रिलेटिव में क्या होगा, कोई दूसरा मीडियम है, जैसे मैंने ये सेकंड वाला एग्जांपल आपको बताया था वाटर और ग्लास का, so that is the example of relative refractive index। so when light is going from one medium to the another medium, इसमें हम वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं। so this is what all about the refractive index। now one more question that comes from the refractive index topic is कि we have a they will start comparing the, for example we have air and the second is water, they will give you the refractive index of both। क्यों बोलेंगे कि water, sorry, they will give you the value of refractive index। I have written here refractive index of water is 1.33, refractive index of air is 1.008। now you can see here I have only written only water, air or diamond, means they are the value absolute refractive index। so n water, n air, n diamond, so 1.33 is the refractive index of water, 1.008 is the refractive index of air। so when you compare these first two values, we have already discussed what is the meaning of optical denser और optical rarer medium। rarer में light की speed ज्यादा होगी और denser में speed क्या होगी, कम होगी। तो now you can compare here
कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, द मीडियम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज मोर, मतलब उसमें लाइट की बेंडिंग ज्यादा होगी, उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और सेकंड जिसकी वैल्यू कम होगी, उसमें बेंडिंग कम होगी, बेंडिंग कम हो रही है तो मतलब उसमें स्पीड ज्यादा है, और स्पीड किस में ज्यादा होती है, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। So second question comes from this topic. One more question that comes from this topic is, now look here, let's assume we have two mediums, medium 1 and medium 2, and this is the surface separating these two medium. ये फॉर्मूला आपका यूज होगा क्योंकि एक एक या दो नंबर वाले क्वेश्चन या एमसीक्यूज है उनमें इसको आपको यूज करना होता है। लेट्स अज्यूम वी हैव टू मीडियम, फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम, ये सेकंड मीडियम का सरफेस है। लाइट जो है वो हमारी किस में एंटर कर रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, मीडियम में एंटर कर रही है, बेंड कर रही है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूले में मैंने बताया था जिसका हम नीचे लिखते हैं उसकी स्पीड नीचे है लाइट की, और जिसको ऊपर लिखते हैं उसकी स्पीड ऊपर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इट विल बी v1 by v2। क्लियर टू एवरीवन कि मैंने यहाँ पे सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा है, दो अज्यूम कर लिए, एक से दूसरे में लाइट जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू, जो ऊपर होता है उसकी लाइट की स्पीड ऊपर, जो नीचे है उसकी लाइट की स्पीड नीचे। लेट्स अज्यूम लाइट की रेडिएशन जो है वो रिवर्स कर रही है, कि सेकंड से कहां जा रही है, फर्स्ट की तरफ, मतलब लाइट की रेडिएशन जो है अब अपोजिट हो रहा है, यू विल गेट कंफ्यूज। तो सेकंड क्या हो रहा है, फर्स्ट में क्या हो रही है, फर्स्ट से सेकंड में जा रही है। सेकंड केस में क्या है, लाइट की रेडिएशन सेकंड से वापस किस में आ रही है, फर्स्ट के अंदर आ रही है। नाउ द डायरेक्शन इज चेंज, पहले फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, सेकंड केस में सेकंड से फर्स्ट में आ रही है। जब सेकंड से फर्स्ट में आएगी तो फिर हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो जब हम v2 by v1 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर स्पीड 2 है नीचे क्या है 1, तो जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो उसकी स्पीड नीचे है। ये v2 और v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और 2, तो v1 by v2। इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, 1 by this 1 by this। तो जब आप रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और इसको 1 by करेंगे तो v1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो v1 by v2। अब यहां देखो v1 by v2 किस चीज के इक्वल है, 1 and 2, मतलब v1 by v2 की जगह पे मैं इस फर्स्ट इक्वेशन से क्या रख दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 by n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और वहां पे मैंने क्या रख दिया, ये। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब दो मीडियम हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम ये क्या है, एयर, और ये क्या है, ग्लास, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का एयर के कंपैरिजन में वो रेसिप्रोकल होगा किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। दोनों क्या है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन अगर हमको एक की वैल्यू दे रखी है तो हम दूसरे की कैलकुलेट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी इरेज सम, फर्स्ट टेक द screenshot, then I will erase it। Let's take the example if you didn't get what I have written here, कि आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कि फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर मीन एंड WA is given 1.33। वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का एयर के कंपैरिजन में कितना है, 1.33। अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो एयर का किसके कंपैरिजन में, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। मतलब पहले केस में वो क्या बोल रहा है कि हमारा क्या है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे क्या है, एयर है। यही वाले को ले लो आप,
एयर से किस में जा रही है, वाटर के अंदर। तो पहले उसने कहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लाइट का, जब वो एयर से वाटर में जा रही है तो कितना है 1.33। वो कह रहा है जब वाटर से एयर में आएगी उसका निकालो NaW। तो आपको क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.33 और जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ पे मैंने लिखा क्या है ये। सो I hope everything is clear related to the law of refraction of light and refractive index. So you will get numerical or MCQ based upon this term. They can directly ask you based upon these two formula, first one. So now you can take the screenshot and can write in your fair notebook how you have to write. First is law of refraction of light. First, second, the diagram that you have already took the screenshot. Then the significance. Then the heading refractive index. First definition is already written. Second, this is the general meaning. Then you have to write first absolute refractive index, its symbol, relative reflective index, then these terms की जो फॉर्मूला वगैरह मैंने लिखा है। देन इन द नेक्स्ट टॉपिक यू हैव टू राइट कि ऑप्टिकल टेंसर की वैल्यू ज्यादा होगी, ऑप्टिकल रेजर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। देन द रिलेशनशिप बिटवीन द in this you can write the heading relationship between the refractive index of sorry, so relationship between the refractive index of two mediums with respect to each other। तो आप ये रिलेशनशिप लिख के आप कोई भी एग्जांपल बुक में से आप देख सकते हो। so now you can take the final screenshot and can write in your fair notebook। so thank you students।